अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वीडियो है हार्ट ट्रांसप्लांट के ऊपर। और हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब कार्डियक सर्जरी, जो कि इंडियन डॉक्टर हैं और उनका नाम है डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन। तो उन्होंने जो है वो इस चेन्नई में उनका एक मुस्लिम है, उनका हार्ट का ट्रांसप्लांट सॉरी। तो ये वीडियो हम जानेंगे के रिव्यूज़ लोगों के जानेंगे कि ये 40 इयर्स ओल्ड जो मोहम्मद ज़ुबैर हाशमी हैं, खारिया के, गुजरात जो है, गुजरात पाकिस्तान में, वहाँ से गए थे इंडिया में, चेन्नई में। वहाँ पर उन्होंने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था। तो जानेंगे कि ये क्या कहते हैं बेसिकली। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड ऑल्सो मेरा न्यू व्लॉग आ गया है, तो प्लीज़ जाएँ और ज़रूर वॉच करें। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, तो आप वॉच करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और बस सपोर्ट करें और बहुत ढेर सारा प्यार दें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में कोई फ़र्क मुझे तो महसूस नहीं हुआ है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान से आए हैं तो इंडिया वाले ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। The first time I heard about him was I got a phone call, I think about maybe 2.5 months ago, from Lahore. Then I spoke to their doctor in charge, and he also confirmed that he's very sick and they're waiting for somebody else to give a clearance. And over the next 3 or 4 days, he seemed to settle down to some extent and was airlifted. जी, जब मैं आया था उस वक्त हालत कमज़ोर थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसप्लांट का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिस वजह से मुझे फिर यहाँ आना पड़ा। And when we saw him here, he was in severe heart failure. His blood pressure was around 60 to 70, and he was not making much urine. In fact, he was making about 200 to 300 cc per day, and his kidney function was also very poor. The creatinine, which is the measure of kidney function, in excess of I think 3.5. So we started a lot of inotropic drugs and other medications, and over the next couple of months he was in and out of this critical ill status. Some days he would improve to some extent, though he could never walk much, and in some more days he would be in deep trouble with the urine output of around. यहाँ जब आया था उस वक्त हालत कमज़ोर थी और ये पेट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा था और टांगों के अंदर भी पानी था, तो हालत बिगड़ चुकी थी, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। And several times we considered the possibility of putting an artificial heart pump to support him. He also had other complexities. He was hepatitis C positive, which affects liver function, apart from being highly infective for the caring staff. And overall, he was considered a very poor risk candidate for any kind of intervention. Nevertheless, or at least on 3 occasions, we debated about the possibility of putting him on some kind of
artificial heart pump. The only problem there was his right ventricle was also poor, and artificial heart pumps, which last for months to years, require a good right ventricle. We considered putting a device through the groin which can support for up to 2 to 3 weeks. But what if at the end of 3 weeks we don't get a heart? So we are in a dilemma really. Luckily, we got a call saying that one O positive heart is available. It was really a challenge to anesthetize these patients, and it was crucial to maintain the hemodynamics before the heart transplantation. And we accepted the O positive heart. और 23 अप्रैल को शाम 8 बजे डॉक्टर ने मुझे बुलाया और उसने कहा कि आपके मरीज़ का अभी हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। तो फिर रात मैंने इधर हॉस्पिटल में गुजारी और रात के तकरीबन 3:30 बजे डॉक्टर बाला कृष्णन आए और उन्होंने मुझे बताया कि हम अभी अंदर जा रहे हैं आपके भाई के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। And then we transplanted his heart with a 38-year-old donor Indian heart. तो फिर तकरीबन सुबह 7:30 बजे वो बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे बताया कि आपके भाई का ट्रांसप्लांट हो गया है और अल्लाह की दाद की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। The challenge doesn't end with the transplantation. After the heart transplantation, again, the end organs will not recover immediately. It will take some time for them to recover. Even though heart is beating well, it takes some time. So we have to maintain those end organs. The other biggest challenge was immunosuppression. Now the heart can get rejected. So we'll have to prevent any rejection, and we use something called modified immunosuppression in this patient. After that, he's been progressively getting better. His heart has taken up very nicely. He's on medication to prevent the heart from rejecting, and fortunately his kidney function has improved. ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी के अंदर इंसान जो अपने मामूलात और मशगूलात के अंदर रहता है वो सारे दिल के अंदर मौजूद हैं। जितने भी मामलात हैं, बरादरी के हों, कारोबारी हों या दूसरे हों, इन तमाम तर का ख्वाहिशात को दिल के अंदर तो समेटे हुए हूँ कि ये सारे जाकर करूँगा। बस ये है कि मुकम्मल सेहत मिल जाए। मैं पहले वहाँ एक इदारे के अंदर पढ़ाता था, तो अब भी इरादा यही है कि वहाँ जाकर पढ़ाना है, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे सारे वही हैं इदारे के साथ ही। तो अल्लाह ताला से उम्मीद यही है कि जो काम कर रहा था वही काम फिर करता रहूँगा। The other challenge is to send him back to his own country and monitor his immunosuppression long term. Last week I had a chat with the professor of cardiology in the Punjab Institute of Cardiology in Lahore to see how best we can coordinate with them so that his follow-up can be done safely. हार्ट टचिंग ये वीडियो थी और इसमें मैंने जो फील किया, मतलब कि ये एक जो कि ज़ुबैर नाम के पाकिस्तानी खारिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए गए हैं। वहाँ पर उन्होंने
जो है वो सर्जरी अपनी करवाई है हार्ट की। तो मतलब कि ये इम्पॉसिबल चीज़ थी जो कि पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती थी, लेकिन इंडिया में उनको मौका मिला। और इंडिया में बहुत ही मतलब इस तरह के डॉक्टर्स हैं, मैं तो कहूँगी बहुत ज़्यादा लाइक डॉक्टर हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट जो हैं वो इंडिया में ही पाकिस्तान से लोग जाकर करवाते थे जब बॉर्डर्स ओपन थे। अब मुझे नहीं पता कि क्योंकि अब सिनेरियो ऐसा हो चुका है कि बॉर्डर के उस पार आम इंसान का जाना तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो अब लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं कि नहीं जाते ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं या फिर जाते हैं तो मुझे तो यही फील होता है कि यार ये जो वक्त था ना, ये वक्त हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस मोमेंट होता है कि वो अपनी लाइफ को स्टार्ट किया और अचानक से उनको जो है अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है, फिर हार्ट का इशू आ जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनको एक आस मिली, एक उम्मीद मिली कि हम यहाँ पर जाएंगे, हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। इससे पहले भी हमने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें एक जो होते हैं डॉक्टर हैं उन्होंने 10 लाख की बात की थी कि 10 लाख में आपका काम हो जाएगा। लेकिन हुआ ये था कि जब उनके खर्चे बढ़ना शुरू हो गए तो वो भी परेशान हो गए पेशेंट कि अब हम क्या करें, क्यों इतना खर्चा हो रहा है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारे पास तो इतना है ही नहीं, तो आधे में ना रुक जाए सब कुछ। तो उन्होंने जब डॉक्टर से बात की थी तो वो डॉक्टर ने यही कहा था कि देखें, आपको हमने प्रॉमिस किया है कि आपका इतने में काम हो जाएगा, आप ये चीज़ भूल जाएं कि आपने एक्स्ट्रा पे करना है, जो भी है वो हमारा सर दर्द है, आपने एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो ये जो बात थी ना, ये एक बहुत ही बड़ी बात थी जो कि एक पेशेंट के लिए स्पेशली बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना तकलीफ़ में होता है तो उसको खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है या कैसे मैनेज होगा, और साथ में जो उसके आया वो होता है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो एक तो पेशेंट की वजह से परेशान है, दूसरा उसको समझ नहीं आ रहा कि सारे सिनेरियोज़ क्या हैं। तो जो मामलात हम देख रहे हैं तो उससे तो मुझे यही आइडिया हो रहा है कि यार इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी नाइस और पोलाइट हैं, बहुत ही ज़्यादा वेलकम करते हैं। और ये फोर्टिस के नाम से कोई हॉस्पिटल है चेन्नई में, उन्होंने जो है वो इतना खूबसूरत काम किया है और जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी दोबारा से रिवाइव हुई है, तो अब वो जाएंगे दोबारा से काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से वैसे ही लेकर चलेंगे। तो वैसे तो हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स इस तरह के होने चाहिए या इस तरह की सर्विसेज होनी चाहिए जिससे लोगों को आउट ऑफ कंट्री ना जाना पड़े। लेकिन अगर क्योंकि 10 साल पहले, 8 से 10 साल पहले की वीडियो है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज, मतलब अब तो काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में भी ये काम हो रहा है हार्ट का कि नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए, मैं ये कहूँगी। तो एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यार बहुत ही ज़्यादा जो मैं कहती हूँ ना कि इमोशनल वीडियो भी था और मतलब दिल को छू गया कि एक बाउंड्री जो है ये एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये बाउंड्रीज़ नहीं होंगी, ये कुछ भी बॉर्डर्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पासपोर्ट होगा, सिर्फ वीज़ा होगा, तो वो आपका हार्ट होगा, दैट्स इट। और वाकई में दिल चाहे तो उधर चले जाओ, दिल चाहे तो इधर आ जाओ, इस तरह का होना चाहिए ना। वैसे यूरोप में तो इस तरह का होता है कि आप उस बॉर्डर चले जाओ, इधर आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि आपने आना है जाना है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना है, दैट्स इट। तो बस मैं भी चाहती हूँ किस तरह के हमारा सिचुएशन हो ताकि लोग आएँ जाएँ, मतलब कोई भी इस तरह के मामलात ना हो, क्योंकि देखो रिस्पेक्ट दोनों कंट्रीज़ की लोगों के बीच में है, दिल में है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो इतना, मुझे नहीं लगता कोई भी कंट्री एक दूसरे से इतना हेट करती है जितना कि हमारे बीच में, हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि लोग इसमें हेट फैला देते हैं। वैसे हेट इतना होना नहीं चाहिए, है भी नहीं, आम लोगों में तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर है तो ये पॉलिटिक्स की वजह से मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वरना अगर हम देखें तो इतना बड़ा ये इशू नहीं था जितना बड़ा इशू मतलब कि ये इतना बनाया जा रहा है, और फ़ायदा लोग उठा रहे हैं ना।
आप देखो ये गोरे फ़ायदा उठा रहे हैं, उन लोगों को चीज़ें बेचने में फ़ायदा होता है। अब रूस एंड रशिया का मामला देख लें तो वो भी तो इसी तरह से कर रहे हैं ना। उनका सॉरी रूस एंड रशिया तो एक ही है। रशिया और यूक्रेन का जो अभी मामला चल रहे हैं तो उसके बीच में मेन इशू क्या आ रहा है कि वो दूसरी कंट्री, थर्ड कंट्री जो है वो उससे फ़ायदा उठा रही है। पहले उन्होंने पिन किया यूक्रेन को, उसके बाद यूक्रेन जब अब बीच में आ गया मैदान में तो अब वो यूक्रेन रो रहा है, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। लेकिन अब जाहिर बात है जिनसे वो इक्विपमेंट्स लेते थे तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ायदा हम लोगों से भी सेम वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ उठा रही हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ को मैं समझती हूँ, पाकिस्तान को और इंडिया को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, अपने बॉर्डर्स को खोलना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। इस तरह बनाएं कि दूसरे लोग जो हैं वो देखें और सोचें कि हमने सोचा क्या था और हो क्या गया। तो मुझे लगता है कि बन सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर पॉलिटिक्स चाहे तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल हार्ट टचिंग वीडियो था, बहुत इमोशनल था। एंड ऑल्सो प्लीज़ जाएँ और मेरा व्लॉग वॉच करें, आप लोगों की मेहरबानी है। और जाएँ और जो है ना लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिन किया हुआ। तो आपने बस करना क्या है कि लिंक के ऊपर क्लिक करना और मेरी वीडियो के ऊपर डायरेक्ट चले जाएंगे और आपने व्लॉग देखना है और मुझे बताना है आपने वहाँ पे आपको कैसा लगा है। और आपने ये भी बताना है कि आप मेरे रिएक्शन चैनल से आए हैं वहाँ पर, तो मुझे आइडिया हो कि कौन कौन मेरे रिएक्शन चैनल से ही आया है, क्योंकि नॉर्मली दूसरे न्यू लोग तो आते ही हैं, लेकिन आप लोग मेरे रिएक्शन चैनल से आए हैं कि नहीं ये मुझे जानना है। तो देखती हूँ कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। सो मैं वेट कर रही हूँ वहाँ पर। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।